Listen carefully and observe it. आज हमारा टॉपिक क्या है? Anyone can tell? Basically, communication skill to the for the morbid patients, morbid disease और या morbid patients या chronic disease, एक ही chronic disease, ठीक है? क्रॉनिक डिजीज मतलब जो कि मतलब ऐसे नहीं नॉर्मल अपने को अगर वायरल वगैरह इन्फेक्शन हुआ तो दैट इज लाइक नॉट क्रॉनिक डिजीज, है ना. क्रॉनिक डिजीज जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग है, पेशेंट को लंबे टाइम के लिए अफेक्ट करता है, तो उसके ट्रीटमेंट में एक काउंसलिंग कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट. लेट इट सपोज कि अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो यू नो कि पेन इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर विच इज गोइंग टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ. And to deal with that, the patient may go from like change in the mood also. There is due to the pain, chronic pain, suffering pain, you know, because in the rheumatoid arthritis usually morning pain, morning stiffness is present. It is a cardinal sign. When patient get early in the morning from the bed, they have pain. In ankylosing spondylitis also, these type of diseases where the pain is the major symptom present, which is distressing, as well as like it is like also disabling them from doing normal work, day to day life. You can say even in the migraine patients, you can see they have tendency to avoid work because of during the ड्यूरेशन ऑफ देयर अटैक टाइम्स. जब भी उनका वो पीक टाइम रहता है उस टाइम पे उनको काम करने में भी काफ़ी दिक्कतें आती है. तो दीज आर लाइक क्रॉनिक कंडीशंस वेयर यू नीड टू बी स्किलफुल इनफ टू राइट, जस्ट नॉट टू राइट द पेन किलर या प्रिस्क्रिप्शन. जो ड्रग है अप्रोप्रिएट वो तो लिखोगे ही, साथ में यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू हाउ टू डिलीवर इट टू पेशेंट, है ना. तो there are few things which you already have been taught. तुम्हें पहले ही बता दिया गया है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में. If you remember, Dr. Ruchi has already taken 5.1, PH 5.1. Today we are going to discuss PH 5.3. तुम्हारे प्रैक्टिकल बुक्स में वो ऑलरेडी दिया हुआ है. तो today we are going to just revise it and we'll go through all the points. Before that, we'll just go through this video and by the end of lecture, link is also given in the slide. You can copy it and listen at your home also, no problem. And communication barriers. Consider the patient's response to each encounter. Come in. Are you a nurse? Mrs. Miller, I am a nurse. Can you get me some pain medication? That other nurse last night was just awful. I only saw her once at the beginning of the shift, and I'm really, really uncomfortable. And I just don't feel good at all. Is there any way you can give me some relief? Well, first off, I need to do a complete assessment on you before I... How long will that take? 20 minutes. Because I'm very busy. And we have other patients. I'm very uncomfortable. Is there any way? She didn't do anything for me last night. All right. Well, on a scale of 1 to 10, 10 being the worst pain you ever had, 1 being no pain or 0 being no pain, where's your pain level? 8 or 9, maybe going more. It's just I haven't had anything to give me any relief. I haven't had any sleep last night. I kept buzzing the buzzer, and she just wouldn't come in. Well, can you do anything for me? Let me go check your medication orders. Can you please hurry? Well, you're not the only patient I have today, so I will do it as fast as I can do it. I hope so. All right, I'll be back. If not, I'm going to talk to your supervisor. Okay. Well, I don't think that's really necessary. It may be. I hope not. Okay. Well, I will go check right now for your pain meds. I'll be back. Thank you. बाकी तुम लोग देख सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूंगा. द मेन पर्पस ऑफ दिस शोइंग द वीडियो इज दैट you understand how to communicate with the patient. So anyone can tell me what are the steps you should take
to communicate with the patient. हाँ भाई, लास्ट 2 एकदम अकेले में कोने में। आवाज आ रही है? कहाँ तक आ रही है आवाज? आगे आ जाओ भैया, हमारी तुम्हारी आवाज हम तक तो नहीं पहुंच पा रही, तो इधर आ जाओ, आवाज पहुंचाओ अपनी। इतना अकेले अकेले कहे, इतना पीछे बैठे हो? ओहो, पहले अकेले बैठे थे, अब ग्रुप में बैठ गए। यहाँ अकेले आके बैठ जाते, यहाँ बैठ, ये खाली है 3-3। हाँ वो है, सही है। यस, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? दिख रहा है, अब तो बोल दो। एम्पैथी। अच्छा, एम्पैथी और सिंपैथी राइम करता है, सेम चीज है, अलग अलग चीज है? हाँ, वेरी गुड। कैसे? यस यस, करेक्ट। ओके ओके ओके, तो इफेक्टिव एम्पैथी क्या हो गया बेटा? जितने हीरो बन रहे हो ना, सबके अभी सेमेस्टर में पता चल जाएंगे, जितने हीरोगिरी तुम्हारी चल रही है ना? सब लोग मार्क दो रडार पे अच्छे से। तो ज्यादा स्मार्ट मेरे सामने बनने की कोशिश करो नहीं। तुम जिस जगह पढ़ रहे हो ना, उसको पास किए हुए मुझे 15 साल हो चुके हैं। तो व्हाट इज एम्पैथी? तो किस तरीके की हो सकती है इफेक्टिव एम्पैथी? द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द अदर पीपल इमोशन, सोमैटिक एम्पैथी एंड कॉग्निटिव एम्पैथी। ओके, मेन क्या है एम्पैथी क्या है? इट इज अ मेजर रोल इन improving and regulating the relationship between physician and patient. What points you should be considering for empathetic conversations? These are the points I am 100% sure you have been taught before in 5.1 also, and you are aware about all these points because of your clinical posting variances. You must have been taken the history from the patients. These are the points you should take always into consideration before dealing with the patients. You should be assess what the patient knows about his illness. Obviously then you're going to ask illness about उसको कब हुआ, कैसे हुआ, डिटेल्स में कब से प्रॉब्लम हो रही है, कब से सिम्टम्स हो रही हैं, एंड दिस ऑल थिंग यू शुड डू इट इन द पोलाइट वे। ये नहीं जल्दी जल्दी में भी नहीं, यू शुड गिव टाइम टू द पेशेंट। अवॉइड मेकिंग रिकमेंडेशन ड्यूरिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग। दिस थिंग मतलब तुम अपने आप से, अगर वो बोलना चाह रहा है पेशेंट की पेट में दर्द हो रहा है, तो तुम खुद से नहीं बोलोगे कि लीडिंग क्वेश्चन तुमको नहीं पूछना है कि राइट में दर्द हो रहा है कि लेफ्ट में दर्द हो रहा है। उसे पूछना है कि तुम्हें दर्द हो किस साइड रहा है, राइट में लेफ्ट में। यू शुड नॉट लीडिंग इट फ्रॉम कि अभी तुम लीडिंग क्वेश्चन पूछोगे तो हाँ ना, यहाँ पे डाइकोटोमस आंसर हमें नहीं चाहिए। हमें जानना है डिटेल्स में कि उसको राइट में ही दर्द हो रहा है, लेफ्ट में दर्द हो रहा है, कि राइट से दर्द हो कि लेफ्ट में रेडिएट हो रहा है। तो दीज थिंग यू शुड कंसिडर टेकिंग हिस्ट्री। History is very precise and it should be taken very thoroughly to arrive at the diagnosis. While taking, मतलब एक at least differential diagnosis you can make it out, है ना? तो avoid making recommendation during the information gathering. Do not jump to the conclusion. ऐसे ही सिर्फ पेट में दर्द हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है तो बोल दिया एपेंडिसाइटिस है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कि कुछ और कॉलिक पेन भी हो सकता है, रेफरल पेन हो सकता है कहीं और का। तो ये हम सीधे यही नहीं जज कर लेंगे कि उसको ये पर्टिकुलर डिजीज ही है ना? तो थोड़ा डिटेल्स में डिटेल्स हिस्ट्री लेंगे। आर यू विथ मी?
या नींद आ रही है थोड़ी सी? 3 बज रहा है, नींद आ रही होगी पोस्ट लंच, है ना? एनीवेज, डू नॉट जंप टू कंक्लूजन, मेंटेन द ऑब्जेक्टिविटी। देखो, अपनी ऑब्जेक्टिविटी भी मेंटेन रखनी है। पेशेंट मिसलीड कर सकता है तुमको, है ना? बी अवेयर ऑफ द पेशेंट बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल मैसेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेल मी हाउ दिस कैन बी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने जिसने भी हिस्ट्री ली है, हिस्ट्री ली है तुम लोगों ने कि नहीं ली है हॉस्पिटल में? हाँ, नहीं ली है? बस लगता है 2-4 लोगों ने ली है, बाकी लोगों ने नहीं ली है। हिस्ट्री ली है? ये बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल मैसेज अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो क्या लगता है कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ? कोई लास्ट, प्लीज लास्ट उससे उठ के वो गेट लगाएगा क्या प्लीज? वो उधर से खुला हुआ है। हाँ जी, तो जब हम लोग ये पॉइंट देख रहे हैं कि नॉन वर्बल मैसेजेस और बॉडी लैंग्वेज, इनका क्या मतलब है? यस, आप बताइए। स्टैंड अप? यस, यू नहीं, आप तुम, हाँ सही करो। क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? The communication to the elderly and those with comorbid conditions. So how to communicate thoroughly. हाँ, तो ये जब मैं बोल रहा हूँ कि हमने स्टार्टिंग में ही ये बोला कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस यूएसली क्रॉनिक कंडीशन, क्योंकि वो डिजीज 1-2 दिन में तो ठीक होने वाली है ना? तो इसमें जब हम बोल रहे हैं लाइन बी अवेयर ऑफ द पेशेंट बॉडी लैंग्वेज या नॉन वर्बल मैसेज, तो इसमें तुमको क्या लगता है कि नॉन वर्बल मैसेजेस क्या होते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है इसका व्हाइल टेकिंग हिस्ट्री या एग्जामिनिंग? देखो, सिंपल सी बात है कि अगर तुम उसके बॉडी लैंग्वेज और उसमें तुम ध्यान दोगे तो तुम ये देखोगे कि कैसे अगर पेशेंट तुम्हारे क्लिनिक में एंटर किया तो तुम देखो वो लिंक कर रहा है, एक साइड झुक रहा है, कमर पे हाथ दिए हुए है, गर्दन पे हाथ दिए हुए, कहाँ पे दिए हुए, तो उससे तुम्हें आइडिया लगेगा ना कि शायद वहां पर पेन हो रहा हो। ठीक है, तो ये these are बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल मैसेजेस भी इम्पोर्टेंट है। बात करते करते पेशेंट पेट को पकड़ रहा है या फिर उसको अनईजीनेस हो रही है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड ही इज इन डिस्ट्रेस, ही और शी इज इन द डिस्ट्रेस, है ना? तो दीज थिंग्स यू विल कंसिडर, मूव ऑन फ्रॉम लेस पर्सनल टू मोर पर्सनल टॉपिक टू रिमूव द पेशेंट इनिशियल डिफेंसिवनेस बोल लो या फिर स्टिग्मा बोल लो। हो सकता है कि तुम्हें उससे उसकी कुछ डिजीज है जिसमें तुम्हें उसकी पर्सनल हिस्ट्री जानने पड़ेगी, हो सकता है सेक्सुअल हिस्ट्री पूछना पड़े या फिर उसका फूड हैबिट पूछना पड़े, उसका डे टू डे कैसा है, तो वो तुम कभी तभी गैदर कर पाओगे जब व्हेन यू ब्रीच दैट बैरियर एंड एबल टू कम्युनिकेट फ्रीली, है ना? तो दीज आर द पॉइंट्स विच यू ऑलरेडी नो, have been taught before and we are just revising it. What are the techniques to make communication effective? These are the 3 techniques. Please read out. Read out. क्या क्या है ये techniques? Yes, doctor-patient interpersonal skill, information gathering skill, and information giving skill, and patient education. These are the 3 things you should
वो एंड वो स्लाइड जो अभी जस्ट स्किप हुआ उसमें यही है कि इम्पोर्टेंट है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स हैं, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पेशेंट हैं, मतलब हर तरीके का पेशेंट अलग अलग है। मतलब किसी को क्रॉनिक डिजीज है, किसी क्रॉनिक डिजीज में डिफरेंट टाइप के डिजीज होते हैं। कोई एल्डरली पेशेंट है तो एल्डरली पेशेंट्स में हम लोग को देखना रहता है कि उससे हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। अब उनको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, ठीक है, ऑब्वियसली। अब अल्जाइमर्स का पेशेंट है और तुम उसको मेडिसिन दे रहे हो, कुछ भी डॉनपेजिल वगैरह या जो भी है अल्जाइमर्स के लिए जो भी देते हैं, और उसके लिए उसको याद रखना तो जरूरी है ना कि पिल लेना है। तो डू यू थिंक कि इट विल बी आइडियल कि तुम पेशेंट को बता दिए पेशेंट ए बी आपको ये 2 बार लेनी है सुबह शाम, आप ले लेना। पेशेंट किस चीज का भाई? अल्जाइमर्स का। हो गया, पेशेंट को याद रहेगा। तो when you communicate such thing you should also remember कि आप उसके साथ जो accompanied person है उसको भी आप बताएंगे, जो उसका केयर प्रोवाइडर है, केयर गिवर है, केयर टेकर है उसके साथ। वैसे ही अलग स्टिग्मा वाले पेशेंट्स हो गए। मान लो किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या HIV है, मतलब एड्स पेशेंट है, तो उससे कम्युनिकेशन करना है, उसका मोरल बूस्ट करना है, ठीक है, उसको फिर काउंसलिंग करना है ना। What is the ethical principle? This is came from Declaration of Helsinki and एक अभी तुम लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जस्ट एथिकल प्रिंसिपल में क्या क्या चीज होते हैं? रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, नॉन मैलिफिशेंस, प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ये 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और एक फिडेलिटी है। टू प्रैक्टिस ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी। तो रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी क्या होता है? राइट टू चूज एंड राइट टू ट्रूथ एंड इन्फॉर्म कंसेंट। ये ऑटोनॉमी में आता है, ठीक है, पेशेंट का। और प्रिंसिपल ऑफ नॉन मैलिफिशेंस, मतलब आप कोई भी पेशेंट को जानबूझ के हार्म नहीं करेंगे, कोई करना भी नहीं चाहता है, बट कोई इंटेंशनली नहीं करना है। प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशेंस, मतलब जो भी अपन दवाई देते हैं इट शुड बी रैशनल, शुड बी बेनिफिशियल टू द पेशेंट। ये नहीं कि फार्मास्यूटिकल बेनिफिट के फायदा में या MR जो आते हैं उसके फायदे में कि अपने को मिलेगा पैसा वैसा, उसमें आके दवा नहीं लिख देना, ये रैशनल मेडिसिन नहीं लिखना। अपना प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशेंस, ऑलवेज एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट, ठीक है। प्रिंसिपल फॉर जस्टिस, ट्रीट ऑल पेशेंट इक्वली। These are the ethical principles. What are the 4 ethical important principles? Autonomy, non-maleficence, beneficence and justice. ठीक है? Now we come to the checklist. This is how we are going to evaluate you. When you come to the examination room, how we are going to evaluate you? हम देखेंगे कि तुमने कैसे बात किया, कम्युनिकेशन एथिक्स चेक किया जाएगा। कैसे बात किया, सॉफ्टली बात की या हार्श बात किया। मेडिकल टर्मिनोलॉजी और जैगरन्स, मतलब हार्ड टर्म्स नहीं यूज करने हैं। अब तुम अगर किसी को बोलोगे कि ठीक है डायबिटीज हाइपरटेंशन तो आजकल कॉमन है, ठीक है, अब आप किसी को पेट ही खराब है, अब तुम उसको बोलो गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रहा है आपको, तो समझ में आएगा क्या उसको? लूज मोशन, क्या बोलोगे? तो मेडिकल जैगरेंस और ये सब हार्ड टर्म नहीं यूज करना है पेशेंट के सामने में। यू शुड बी टेल दोज थिंग विच इन लोकल लैंग्वेज, इवन हो सकता है जो यहाँ का लैंग्वेज है उसमें उसको आपको समझाना है, ठीक है ना। इन द एंड सम्स अप द इंस्ट्रक्शन इन 3 और 4 मेन पॉइंट्स, बोल्ड पॉइंट्स बनाने हैं, बताने ये चीज आपको करना है। जैसे दवा कब लेनी है, सुबह शाम, खाने के बाद, पहले, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये शिट आपको पानी लेना है, उसके साथ पानी के साथ लेना है, दूध के साथ लेना है, कैसे लेना है वो बताना है, कितनी देर का गैप रखना है। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। बिफोर द पेशेंट लीव, इनकरेज हिम और हर टू स्पीक बैक वॉट एवर उनका जो डाउट होगा, है ना।
फिर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द मेडिकेशन, ये सब जो अभी मैंने बताया वो तुमको सारा एसोसिएशन विद डोजिंग शेड्यूल ये सब सारा उनको बताना है। एक केस सिनारियो जो हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस का देखा था, शुरू में आते ही डिस्कस किया था, ऐसा ही कोई केस ले लो, मान लो डिप्रेशन है उसको, पेशेंट को हम लोग एमिट्रिप्टिलिन दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका कम्युनिकेशन देखो कैसे करेंगे। डिस्कस द केस सिनेरियो, हाउ टू डिक्लेयर द पेशेंट अबाउट इज न्यूली डायग्नोस्ड इलनेस। ये क्वेश्चन आ गया, हमने क्वेश्चन दे दिया तुमसे, ये स्टेशन पे मैनिक्यूर रखा रहेगा और ये क्वेश्चंस रहेंगे, तो फिर तुमको बताना है जैसे जो पॉइंट्स हैं एथिक्स है स्पीकिंग के सॉफ्टली और ये सब सारे ध्यान में रख के हम चेकलिस्ट पे हम लोग चेक करेंगे, उससे तुमको इवेल्युएट करेंगे। तो ये डिस्कस ऐसे केस सिनेरियो है दिया रहा है। फिर ये क्वेश्चंस होंगे, व्हाट ऑल टू एक्सप्लेन द पेशेंट रिगार्डिंग द प्रिस्क्राइब मेडिसिन, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या क्या करने हैं, राइट एंड रॉन्ग मेथड ऑफ डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ द स्किल कैन बी मॉडिफाइड, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। असेसमेंट विल बी डन ऑन द स्किल स्टेशन, स्किल स्टेशन में हम वहां पे डमी पेशेंट रखा जाएगा, केस सिनेरियो दिया जाएगा। दिस इज द यूट्यूब लिंक, क्लिक द फोटो, distribute among yourself